सर। तो सर अब ये है कि उसमें और प्रॉब्लम बनवाते, लेकिन टाइम नहीं है, वे नो टाइम। वेक्टर स्पेस, व्हाट इज द वेक्टर स्पेस? देखो GBA non-empty, let VBA non-empty sets of let V be a non-empty set of let V be a non-empty set of objects real number कोई फंक्शन ले सकते हो, फंक्शन, एनी फंक्शन, रियल नंबर फंक्शन, और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स these objects are said to be element of non-empty set V, and is called vectors. सर लेट भी उसके बाद क्या लिखे हैं? क्लियर नहीं दिख रहा है। लेट भी बी ए नॉन एम्प्टी। जो थोड़ा सी हियर, लेट भी बी ए सेट में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, मे बी योर राइट देयर इज ए फंक्शन x² + 1, ये भी एक फंक्शन हुआ। इट में भी रियल नंबर हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है इसमें, है ना। इस सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एलिमेंट कहते हैं इसको, और किसी भी वेक्टर भी के एलिमेंट को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, और जिसको कैपिटल बोल्ड लेटर में ABC के रूप में सूचित किया जाता है, आर कॉल्ड वेक्टर्स। बट यू हैव टू स्टडी वेक्टर स्पेस, है ना। नाउ we define two operations addition नहीं दिख रहा and a scalar multiplication। सर दिख नहीं रहा कुछ। अरे तेको नहीं दिख रहा होगा यार, दिख रहा है। वहां पर मुझे लिखता है and a scalar child। now two operations addition and multiplication करो डायरेक्ट। मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देना विथ स्केलर ब्रैकेट में, विथ स्केलर क्वांटिटी। नाउ वी डिफाइन मल्टीप्लिकेशन का डॉट होता है ना, डॉट
on set V and is denoted as V plus into dot multiplication. Now the algebraic structure V plus dot is said to be a vector space Vs, आगे हम Vs लिखा करेंगे, वेक्टर स्पेस if satisfies क्या होता है? ठंडा लगा था ये घर। A plus B belongs V. This property you known as closure property. में क्या लिखा है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हाँ, algebraic structure. Second, it also satisfies the commutative law of addition. This is your commutative law. Commutative law of addition. जबकि मल्टीप्लिकेशन का भी होता है। थर्ड, A plus B plus C must be equal to A, B plus C. This is called the associative law. सर फर्स्ट वाले में ब्रैकेट में क्या लिखा है? On closure. क्लास For दिख रहा है सर। A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A. This is called the identity. इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी। ऐसे कर देना कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कर दो। एग्जिस्टेंस of identity and फिर A dot A dash A plus minus of A plus A is equal to 0. This is called the existence of inverse. Property number 2. First, A dot alpha into A belongs in A. This property you call closure property. Second, A dot B equal to B dot A. Commutative. This is the commutative for
डिस्ट्रीब्यूटिव इनवर्स भी रहेगा और अल्फा, सॉरी लेकिन ये तो है इसका ना कम्यूटेटिव लॉ तो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा of A must be equal to alpha A plus beta A. This is called the left distributive. Left distributive and fourth A dot alpha plus beta is equal to A alpha plus A beta. This is called the right distributive. Right distributive. Fifth, if we take the element A dash, so that it becomes 1. Either A dash of A. Existence of identity. Existence of identity. है ना? देखो थोड़ा सा समझ लो तुम लोग अलग हटके। हमने ये कहा कि लेट भी ये सेट, इससे ऐसा है कि जो नॉन एम्प्टी है, मैंने कि इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट है। दिस एलिमेंट ऑफ दिस सेट में बी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी फंक्शन और एनी ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी एलिमेंट होंगे दैट ऑल एलिमेंट्स इन वेक्टर स्पेस और मे बी ऑल द वेक्टर, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। यही हमने लिखा है यहाँ पर। तो वेक्टर है, सो सपोज दैट यहाँ पर लिख देना where A, B, C belongs are vectors, ये vectors हैं, are vectors in V, capital V, and alpha, beta are scalars, ये scalar quantity are scalar quantity. So then if this set V, when it is called the vector space, if we define the two operations addition and multiplication, if these two operations may be as usual, जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं 2 + 3, 3 + 2, 5 + 9 and so on etc. और it may be defined in another way. ये addition का परिभाषा हम दूसरे रूप में भी दे सकते हैं। Similarly, this multiplication may be as usual, as you know, 3 × 5 = 15. But this addition, sorry, this multiplication may be defined in another way. उसको अलग तरीके से हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। तो if this non-empty set together with the two binary operations, अगर इस सेट पर हम दो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं and this satisfies the following 10 properties, then we say that this is the algebraic structure with the two operations in the vector space. क्या क्या याद करना हो गया कि ये सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, किसी भी एलिमेंट्स को इसको हम लोग वेक्टर्स कहेंगे और स्केलर क्वांटिटी अलग से ले रहे हैं। इस पर दो ऑपरेशन हमने डिफाइन कर रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। These two operations may be as usual, जैसे पहले वाला होता है वैसे भी हो सकता है, और may be defined in any way, किसी प्रकार से इसको डिफाइन किया जा सकता है। बट these two operations should be defined, वो डिफाइन होना चाहिए। तो and if we take this and this set satisfy the following properties, then this algebraic structure is called the vector space। तब इसको हम लोग वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो हम समय रहता
तो और डीप में जाते, है ना। लेकिन जैसे ये कह दिया कि 10 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो वेक्टर स्पेस होगा। तुमको क्वेश्चन आया एंड वी हैव टू एग्जामिन कि वेदर दिस सेट इधर वेक्टर स्पेस और नॉट। तो मान लिया जाए कि तुमको उस वेक्टर का जो भी है डिफाइन रहेगा कि कैसा सेट है। तो जब डिफाइन रहेगा कैसा सेट है तो तुम उसमें ये थोड़ा सा अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो कि किस प्रॉपर्टी की उम्मीद है कि ये नहीं सेटिस्फाइड करेगा, उसी को केवल एगो देखा दो। ये 10 में से 9 को सेटिस्फाइड करे, एक को सेटिस्फाइड अगर नहीं करे तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा ना। जैसे सी देखो, let V be a set of all order pair, जरा जस्ट मिनट आ रहे हैं, आर वेक्टर्स यानी V में बिलोंग करते हैं इन V एंड अल्फा बीटा आर स्केलर्स, ये स्केलर्स है। let V be a set of all order pairs, let V be a set of all ordered pairs, all ordered pairs x by where x y are the real numbers belongs R, रियल नंबर का सेट है R, belongs R. Let A be the vector x1, y1 and दूसरा वेक्टर हमने ले लिया B. B is the another vectors x2, y2, x2, y2. Be the two elements of V were defined as वेक्टर A प्लस B। देखो ये दोनों वेक्टर है A और B, जो V के एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स है, और इस पर हम एडिशन डिफाइन कर रहे हैं, ताकि यूजुअल वे में नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि x1 y1 प्लस x2 y2, है ना। एडिशन कैसे डिफाइन किया हमने कि 2x1 माइनस 3x2 कॉमा y1 माइनस y2। एडिशन कैसे डिफाइन किया, एंड कि अल्फा एक्स वाई अल्फा ए यानी कि अल्फा x1 y1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर है तुम्हारा, स्केलर है, इसको मल्टीप्लाइड किया तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, एंड इज डिफाइंड एज कि अल्फा x1 by 3 अल्फा y1 by 3। बट यू सी हियर स्पीडेड कि हियर एडिशन इज नॉट इक्वल, जैसा हम लोग जानते हैं उस तरह से नहीं है, ये अलग इसको डिफाइन किया गया है। आल्सो हियर स्पीडेड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन of these vectors with the scalars alpha is not as usual but is defined as a special case, एक स्पेशल रूप से हमने इसको डिफाइन किया है। तो अंडर दिस डिफिनिशन ऑफ द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन we have to examine whether the set of vectors V together with these operations addition and multiplication defined in such way is a vector space or not। तब तो फिर है कि इतना प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करे, और नहीं तो इसमें से कोई एक नहीं करे तभी वेक्टर स्पेस नहीं होगा, है ना। तो सी हियर और भी है
इसमें वेयर इसमें दिया है वेयर अल्फा बिलोंग्स रियल नंबर से is a scalar then show that he is not a vector space. So that he is not a vector space which of the properties are not satisfied. Which of the properties are not satisfied. इसमें से कौन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है? इतने प्रॉपर्टी तुमको देखना है। तो clearly B. First, A plus B means A is your x1 y1 plus of x2 y2, and this addition is defined in such way that 2x1 minus 3x2 comma y1 minus y2 जरा b plus a निकाल दो। नाउ b plus a और ये बिलोंग करता है v में। देखो ये बिलोंग करता है v में। ये दोनों प्रॉपर्टी दिखा देते हैं क्योंकि ये वेक्टर है तो दो वेक्टरों का एडिशन भी, चाहे व्हाट में बी द डेफिनेशन ऑफ दिस एडिशन मे बी आल्सो बिलोंग इन v, तब हम कहते हैं कि दैट सेट v इज वो क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू दैट एडिशन। अब यहां पर देखो तो v दिस इंप्लाइज दैट कि सेट v इज obey the closure property। क्लोजर दोनों में है, एडिशन में भी है और मल्टीप्लिकेशन में भी है। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन का क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। पहला प्रॉपर्टी है ये आपका। सेकेंड प्रॉपर्टी कि नाउ a प्लस बी, इफ वी एड a प्लस बी यानी कि x1 y1 plus x2 y2, then by given definition this will be your 2x1 minus 3x2 comma y1 minus y2 and if we take b equal to a, b plus a, this means that x2 y2 plus of x1 y1 this may be written। देखो तो यहाँ x1 y1 पहले है और x2 y2 बाद में है, परिभाषा ये है। आज ये जब पहले हो गया दिस may be कि 2x2 बोलो minus 3x1 and y2 minus y1। अब थोड़ा सा सोचो कि x1 y1 x2 y2 are real numbers belongs in V में बिलोंग करता है, तो क्या ये संख्या इस संख्या के बराबर है? नहीं।
क्लियरली कि 2x1 माइनस 3x2 y1 माइनस y2 नॉट इक्वल टू 2x2 माइनस 3x1 y2 माइनस y1 नहीं, दिस मीन्स दैट कि a प्लस b नॉट इक्वल टू b प्लस a, है ना। दिस मीन्स दैट कि b does not satisfy the commutative law of addition के कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो जब एक को प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करता है, इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं, तो यही कलर हो गया। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये डाल दिया कि विच ऑफ द प्रॉपर्टी आर, कहां लिखे हैं, विच ऑफ द प्रॉपर्टी आर नॉट सेटिस्फाइड, कौन कौन सेटिस्फाइड। जैसे देखो यहाँ क्लोजर तो सेटिस्फाइड हो गया, कम्यूटेटिव लॉ नहीं हो रहा है, इसी प्रकार एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में भी है, ऑफ एडिशन इज नॉट satisfied, thus set V is not a vector space, under the defined operations, इसी तरह से रहेगा, है ना। बोलो सर, एसोसिएटिव सिमिलरली एसोसिएटिव के लिए सी को Similarly, associativity of addition is not satisfied, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम लोग निकालते हैं, कैसे होता, a प्लस b प्लस c, पहले a प्लस b को जोड़ दो, फिर उसको c के साथ जोड़ो। अब पहले b और q सर तो c अज्यूम कर लेते हैं x3 y3, x3, हाँ अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लो c इक्वल टू x3 y3। सर ऐसा क्वेश्चन तो सर एग्जाम में बहुत लंबा हो जाएगा लिखते लिखते ही। तो क्या करोगे इसको, यहाँ सर एक ही दीजिएगा। a plus b is already obtained, 2x1 minus 3x2 and y1 minus y2, हमने मान लिया कि if there be a third vector c having element x3 y3, then a plus b plus c means कि 2x1 minus 3x2 y1 minus y2 plus c is your x3 y3, then by definition, चलो by definition what we have to see कि 2x1 is here कि 2x1 minus 3x2, ये तुम्हारा x1 हो गया पहले डिफिनेशन के लिए, and minus 3x2 is your x3 and y1 minus y2, this is your y1 minus y2 minus y3, ये तुम्हारा एलिमेंट आया
This is your A plus B plus C. अब तुम दिख रहा ना कि नाउ फाइंड कि वेक्टर A B प्लस C, तुम इसको निकालो और देखना कि इसके बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होल्ड करता है। नाउ वी कम सर ऐसे हर प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा क्या? ना ना, एगो दूगो करके दिखा दो कि सब चेक करने लगोगे तो उसी में रह जाओगे तुम तो। यस सर, ये साफ चेक कर कर डॉक्टर। सर पर जैसे इसमें दिया था ना कि सारा बताना है कि किसी डिपेंडेंस कॉमा इंडिपेंडेंस and linear combination linear dependence, independence and linear combination. देखो लेट x1 x2 x3 xn are n vectors and alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n are n scalars if any vector x हमने मान लिया, if any vector x can be expressed as x is equal to alpha 1 x1 alpha 2 x2 alpha n xn, then x is expressed as linear combinations of n vectors, x1 x2 xn. now अब इसी में फिर पैराग्राफ लिखना। now alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha n are n scalars such that
such that the linear combination of n vectors x1, x2, xn is 0। बताओ तो इसको कहेंगे कि x is the linear combination x1, x2, x3 या where alpha and alpha 2 alpha n are your scalars। अब तुमने कहा कि अगर n वेक्टर्स हो x1, x2, xn और उनके करस्पॉन्डिंग n स्केलर्स हो उसी के अनुरूप, है ना, and alpha beta are n scalars छोड़ दो, हाँ, 0, then independent linear combination of x1, x2 is 0, that is कि alpha 1 x1 alpha 2 x2 कि प्लस अल्फा n xn ये 0 के बराबर, ठीक है, कि 0 if इस कंडीशन पर if all scalars are 0, that is कि alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha n are 0। अगर सभी स्केलर का वैल्यू 0 है, then वेक्टर्स n जो वेक्टर्स है x1, x2, x3, xn are linearly independent, तब तो linearly independent होगा, है ना। अगर इस n में से कम कोई एक 0 के बराबर नहीं हो, linearly dependent होगा। देख, now if at least one scalars is not equal to 0, ना, कम से कम एक, then ये वेक्टर्स जो है तुम्हारा वेक्टर्स x1, x2, x3, xn are linearly dependent। अब तुम लोग देखो, तो मान लीजिए कि यही हमारा कॉम्बिनेशन है ना। लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n माने सभी स्केलर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, और डिपेंडेंट के लिए इस n स्केलर्स में से कम एक ना नन 0 होना चाहिए। तो जब मान लिया जाए कि अगर ये नन 0 के बराबर है, तो बाकी टर्म को अगर हम इधर कर दें तो बाएं साइड में बच जाएगा अल्फा 1 x1 को रख ले, अल्फा 1 को डिवाइड कर दें, क्योंकि अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। इसका मतलब है कि x1 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द linear combination of the other n minus 1 vectors। तो linearly dependent की एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक वेक्टर को बाकी के रूप में हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखा सकते हैं। इसलिए यहां पर लिख सकते हो कि in this case कि at least one vector
may be expressed as linear combination of others. तो दूसरे के रूप में लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप